Writing a sales copy is not that easy, especially something which you need to write to persuade and influence people to buy your product. But आसान चीज करने में क्या मजा जब तक उसमें कोई चैलेंज ना हो. So as a business owner and as a newbie copywriter, you must learn this skill so that you can persuade people with your words. एज अ बिजनेस ओनर आपको इंपॉर्टेंट नहीं है ये स्किल इन डेप्थ तक जानने के लिए, बट if you want to grow your business, you definitely must know how you will be able to influence people to buy your product. Then only you will be able to guide that particular copywriter in writing the most awesome copy that you want, because product आपने create किया है, so you know exactly what this product is capable of. So the copy which is should be written should be in your words, because you will be able to explain it much better than any other writer. So for all these things, you must know the nuances and the elements of a persuasive copy. आपको सेल्स कॉपी का एक एक एलिमेंट्स पता होना चाहिए कि हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए जिससे लोग इन्फ्लुएंस होंगे एंड उससे परसुएड होंगे. That's what we are going to do in this video. We are going to learn about the magic building blocks that can help you to write a persuasive sales copy, और जिसका मदद से आप अपने प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकते हैं. So in this video we are going to cover why is it important to write a persuasive copy. Then we will understand why people are not able to write a persuasive sales copy, reasons why most people buy, and the magic building blocks that should be included in your sales copy if you want to persuade people, and some important few minute last minute tips that will help you to take your copy to another level and get in more revenue for your business. So stay tuned till the end so that you can understand how you can influence people and persuade them to buy your copy, buy your product. So, without much delay, let's get into this. Hi, I'm Ankit Kumar and I'm an engineer turned digital geek. And चलिए हम आज देखते हैं कि हम कैसे कोई भी persuasive sales copy फास्ट लिख सकते हैं. धीरे धीरे नहीं, जबकि आप फास्ट कैसे लिख सकते हैं उस कॉपी को, because we have less time, so we don't want to waste it. So let's begin this topic of how you can write a persuasive sales copy faster than you can think of. So let's first understand why is it important to write a persuasive sales copy. कॉपी इतना हमें ऐसा क्यों लिखना चाहिए ताकि हम परसुएड कर सके लोगों को अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए. रिमेंबर, digital marketing is all about right message to the right person at the right time. But फिलहाल कुछ दिनों से पहले, कुछ सालों पहले जब ये कुकीज एंड ऑल जब इंट्रोड्यूस हुए, तो इसके कारण ये हुआ कि राइट मैसेज का वैल्यू कम हो गया. एंड ओनली इफ यू हैव द राइट पर्सन at the right time, if you can catch them, then most people were able to sell their copy, because आप एड्स के थ्रू उनको एकदम स्पेसिफिकली टारगेट कर पा रहे थे, एंड यू विल बी एंड आप अपना प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता पा रहे थे. लेकिन इन रीसेंट पास्ट, आफ्टर द iOS अपडेट, द वैल्यू ऑफ राइट मैसेज हैज अगेन कम बैक, बिकॉज अब सिंस अब iOS अपडेट के बाद आपके जो एड्स हैं वो एग्जैक्ट ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो सकते हैं. सो अब आपके पास जो ऑडियंस आएगा वो लेस वैल्यू का रहेगा, मतलब वो नंबर्स में लेस वो रहेंगे. सो यू वुड नीड टू हैव हायर कन्वर्जन रेट इन योर कॉपी टू गेट मोर रेवेन्यू इन योर पॉकेट, जो कि पहले उल्टा होता था. आपके पास बल्क में ऑडियंस आ जाते थे, एंड इवन इफ यू हैव मीडियोकर कॉपी एंड कन्वर्जन रेट इज लेस, यू बिजनेस ओनर पैसा बना पाते थे. लेकिन अब वैसा नहीं होगा. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू लर्न how to write a persuasive sales copy. Next it is why
as a business owner and as a copywriters why they are not able to write a persuasive sales copy. ऐसा क्यों होता है कि हम सोचते तो हैं कि हम इनको परसुएट कर देंगे, इन्फ्लुएंस कर देंगे अपना प्रोडक्ट खरीदने को लेकर, हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन तब भी हम लोगों को वो चीज बेच नहीं पाते थे, हम अपने वर्ड्स के थ्रू लोगों को समझा नहीं पाते थे, उन्हें उसका वैल्यू जता नहीं पाते थे। ऐसा क्यों होता था? लेट्स अंडरस्टैंड दीज, because understanding why we are not able to do things, then only we would be able to move in the right direction. हमें पहले क्या गलती कर रहे थे वो हमें जानना होगा, तब जाके हम अपने असली डायरेक्शन में जा पाएंगे। सो हियर आर द रीजंस, बिकॉज पहला, हम लोग कस्टमर का एग्जैक्ट साइकोलॉजी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि व्हाट इज देयर ड्रीम, व्हाट इज देयर फियर, व्हाट आर देयर ऑब्जेक्शंस, उन्हें इनर कोर में उनको एक्चुअली चाहिए क्या। That's why we were not able to portray that in form of words in our sales copy. Second is, हम अपने people का objections and fears के बारे में अनजान थे, हम नहीं जानते थे कि उन्हें क्या चीज रोड ब्लॉक, उन्हें क्या रोक रहा है कोई भी चीज खरीदने से। Third is the focus, we were too much focused on our product and not the customers. हम प्रोडक्ट को तो वर्ल्ड क्लास बना दे रहे थे, लेकिन जब तक जो कस्टमर उसे यूज करने वाला है उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी ना ले एंड एक्चुअली अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस कस्टमर वांट्स, तब तक हम एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। सो वी मस्ट एज अ business owner focus upon the customers in a sales copy as well and make people understand that ये प्रोडक्ट आपकी वजह से नहीं, आप ये प्रोडक्ट की वजह से आप नहीं हो, आपकी वजह से ये प्रोडक्ट है और ये आपके लिए बनाया गया है। You need to explain that. And fourth is, as a copywriter हम सब चीज स्क्रैच से लिखने चल जा रहे थे, but as you know that great copies have left clues. हमारे पास ऐसे बहुत सारे पहले कॉपी राइटर्स हैं, अभी भी बहुत अपने वर्ड से लोग परसुएट करते हैं, सो हम उनसे इंस्पिरेशंस लेना चाहिए, ना कि अपने से स्क्रैच स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस and experiments to know exactly how should your headlines be structured or how should your bullets point should be structured and all those things. So क्यों ना हम जो कॉपी ऑलरेडी वर्क कर रहा है मार्केट में उनसे इंस्पिरेशन लेके कुछ लिखे। So these were the 4 mistakes that people were making and I hope from today onwards you won't be doing that. चलिए, यहां तो हमने जान लिया कि क्यों कॉपी people are not able to write this copy. But first, let's understand why people buy exactly. Reasons why people buy. You would have heard and know that we as a human being don't buy things with logic. We buy it with emotion. हमें जब तक वो चीज का फीलिंग नहीं आता कि हमारे लिए सही है, we don't buy it. भले कोई कितना भी समझा ले या कितना भी स्टैट्स दिखा ले, हमें वो फीलिंग आना चाहिए कि हमारे लिए सही है, तभी हम जाके उसे खरीदते हैं एंड वो इमोशंस हमारे अंदर से आना चाहिए। एंड दीज आर द इमोशंस विच पीपल गेट और दीज आर द रीजंस विच व्हाई पीपल वांट टू बाय योर प्रोडक्ट। फर्स्ट, दे वांट टू मेक मनी, save time, avoid effort, escape pain, gain praise, get more comfort, feel more loved, attain better health and increase their social status. These are the 10 reasons why most people buy your product. So you need to make sure that in your sales copy few or most of these reasons are covered. आपको अपने सेल्स कॉपी को इस तरह से स्ट्रक्चर करना होगा ताकि आप ईच ऑफ दीज पॉइंट्स को टारगेट कर सकें और इन्हें हाईलाइट कर सकें कि दिस इज व्हाई यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट। So now let's move to the crux of today's topic, that is the building blocks of each of this sales copy. So here, what few important reminders before we go into this is each element, each section of your copy के लिए आपको ये 4 चीज ध्यान रखनी चाहिए कि clarity creates cash. आपको अपने ऑडियंस को सब चीज क्लियरली एंड स्पेसिफिकली बताना होगा, ना कि उन्हें उझरा के रखना होगा। यू कांट कंफ्यूज देम, दे शुड बी क्रिस्टल क्लियर एज टू व्हाट दे आर गेटिंग, बिकॉज उसी से आपके
पास और सेल्स आएंगे एंड यू विल गेट रेवेन्यू इन योर बैंक अकाउंट. Second is you don't have to sound clever and have to confuse your reader because a confused mind cannot take right decisions. So अगर आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो आपको लोगों को कंफ्यूज नहीं करके उन्हें सब चीज क्लियरली बताना होगा और उस तरह के वर्ड्स भी यूज करेंगे करना होगा जो लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. तब जाके यू वुड बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट मोर इफेक्टिवली. थर्ड इज राइट टू वन पर्सन एंड नॉट मासेस. आप भले आपके ऑडियंस टारगेट ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं लेकिन जब वो कोई कॉपी देख रहे हैं पढ़ रहे हो या जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक एक करके इन्हें वीडियो देख रहे हैं, सब एक साथ तो नहीं देख रहे हो. सो एज अ बिजनेस ओनर यू मस्ट टारगेट दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड नॉट अ होल ग्रुप. दैट्स वाई focus on getting to understand the desire, the goals, the fears, objections of that particular person and not the whole masses. Use words that appeals to the person and not a general market. And fourth is focus on the outcome and not your product. आपने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना दिया लेकिन किसके लिए बनाया? कस्टमर के लिए. सो यू नीड टू फोकस अपॉन द आउटकम दैट द कस्टमर विल गेट आफ्टर यूजिंग योर प्रोडक्ट. उनका क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उनको उनके क्या गोल्स अचीव होंगे, उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलेगा. यू शुड फोकस अपॉन दैट एंड नॉट कि आपके प्रोडक्ट्स के फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट कितना अच्छा दिखने में है, प्रोडक्ट कैसे काम कर सकता है. वो सब बाद में आएगा, वो सब इंपॉर्टेंट है बट फर्स्ट यू नीड टू फोकस अपॉन द बेनिफिट्स एंड द आउटकम्स दैट पीपल विल गेट. सो लेट्स मूव टू द अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेल्स कॉपी. फर्स्ट इज इंस्टेंट क्लैरिटी हेडलाइन. कि ऐसा वो हेडलाइन जो इंस्टेंटली क्लियर कर दे कि ये कॉपी और ये प्रोडक्ट किस बारे में है, किस आउटकम को ये हेल्प कर सकता है वो प्रोडक्ट लेने में, मतलब क्या आउटकम वो हमें हेल्प कर सकता है टू गेट. द पर्पस ऑफ दिस इज, हेडलाइन का एक ही पर्पस है, टू अट्रैक्ट द राइट कस्टमर टू रीड योर कॉपी एंड एलिमिनेट द रेस्ट. आपने ये कॉपी सबके लिए नहीं लिखा है, आपने कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस के लिए लिखा है. सो योर द वर्क ऑफ योर हेडलाइन शुड बी टू अट्रैक्ट द राइट कस्टमर हु कुड रियली बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड to make them read your complete copy and eliminates the rest who doesn't require this. Then you must in your headline you must highlight the main desire. Ki what is the exact desire that is pushing your people to buy your product. It may be problem that it can solve or it may be the end results that customer wants. So focus on that particular main desire why people are wanting to buy your product. Next, the formula which you can use for this purpose is end result plus time frame plus clearing the objection. ये formula आप use कर सकते हैं. Like for example, you can do that how to write a killer blog post in under 60 minutes. आपने time frame 60 minutes कर दिया and the end result is they are able to write a blog post which is clear and which could persuade people. और सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ टू राइट अ परसुएसिव कॉपी इन अंडर 16 मिनट्स इवन इफ यू हैवंट रिटन एनी वर्ड बिफोर. ये कितना पावरफुल है, राइट? यहाँ पे हमने ऑब्जेक्शंस भी क्लियर कर लिया कि लोगों को ऑब्जेक्शंस होगा कि मैंने आज तक तो कभी एक वर्ड नहीं लिखा कॉपी का, या आज तक एक वर्ड नहीं लिखा अपने अच्छे से जो परसुएट कर सके पीपल. तो दिस हेडलाइन clearly eliminates that objection and gives them that even if they haven't written a word before, they will be able to write a persuasive copy in under 60 minutes. So that's the power of main benefit. So कोई नहीं भी इंटरेस्टेड होगा तो वो ये स्टेटमेंट देख के जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो जाएगा एंड दे वुड वांट टू लर्न कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है कि जब जो मुझे इतना इन्फ्लुएंस कर सकता है और मुझे इतना हेल्प कर सकता है. So you need to highlight the biggest benefit of your product into the headlines. Next is the opening. Headline के बाद आता है opening कि आप कैसे headline से तो लोग आपके कॉपी के अंदर आ गए and they have started reading it, but they must read the complete thing so that they can be persuaded. So
The purpose of this headline is to set the criteria of what to expect and what people will gain from reading your copy. उन्हें क्या गेन होगा अगर वो ये चीज पढ़ते हैं तो. सो द थिंग विच यू कैन डू हियर इज, जब लोग आपके कॉपी जब आप लोग आपकी सेल्स पेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये हो सकता है कि दे आर डिस्ट्रैक्टेड, दे आर यूजिंग देयर सेल फोन और दे आर टॉकिंग टू देयर फैमिली मेंबर्स और they must be doing anything and not focusing on your copy. So you need to get their complete attention so that they can read copy with full attention, because where attention goes energy flows. तो आप चाहेंगे कि उनका प्रॉपर अटेंशन एनर्जी आपकी कॉपी में रहे, ना कि इधर उधर. So what you can do is you can use shocking statements to do this. So so that you can get their attention and remove their distraction. You can use statements starting with did you know, and you can include some stats which is really shocking and which is जो हमें बताता है, एक्चुअल पिक्चर दिखाता. So you can use those elements to shock the people and get the proper attention into your copy. After that, you can continue this by using a formula called PAS, that is problem, agitate and solution. First, you need to define the exact problem that your customer is facing. If you can describe your customer's current problem better than they can, आपने उनके फीलिंग्स को उनसे अच्छा से बयां कर दिया, so they will be unconsciously think that you will definitely have a solution, and वो एक्चुअली में आपसे इंस्पायर हो जाएंगे कि हाँ, इस बंदे के पास मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एंड ही कैन गिव मी दैट. सो दैट्स वेयर यू कैन स्टार्ट. Next is agitate. Make the problem hurt more so that they are ready to pay. Because more the pain, more they will want to get your product. हम दो ही चीज के कारण बाय करते हैं कोई प्रोडक्ट, या फिर हमें कोई प्लेजर चाहिए या हम कोई प्रॉब्लम से दूर भागना चाहते हैं. सो हियर what you can do is you can highlight the exact feelings, exact pain, कि उन्हें अंदर से कैसा खोखलापन, उन्हें कितना लग रहा हो, वो कितना पेन खुद में महसूस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना होने पे. यू कैन एक्सप्रेस दैट इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ताकि उन्हें लोग ज्यादा हो कि हाँ, ये इंसान तो सच बोल रहा है एंड ही अंडरस्टैंड्स मी डीपली, ताकि वो फिर आपको सुनने के लिए तैयार रहे कि क्या इस इंसान के पास मेरे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. देन यू इंट्रोड्यूस द सोल्यूशन टू द ऑडियंस, नॉट द कंप्लीट सोल्यूशन बट a few elements which let them get curious yes, he might have a solution, and they would continue reading your copy. So here the complete structure that you can do is that you can transition into different phases, like here's a problem you face and after that define the problem, which means you will, फिर आप यहाँ पे उनका फीलिंग्स बता रहे हैं, and after that let me introduce you to, and then you are defining the solution that can help them. So this is the structure which you can follow for your opening, after starting with a did you know and a shocking statement. उस स्टेटमेंट के बाद आप ये फॉर्मूला यूज करके उन्हें अपने कॉपी में और उन्हें अपने सेल्स पेज में उनको इन्फ्लुएंस कर सकते कि वो आपके सेल्स पेज को कंप्लीट पढ़े. So after this opening, what you have to include in your sales copy is the bullets. आपको अपने बुलेट्स पॉइंटर्स में एक एक एलिमेंट्स बताना होगा. बुलेट्स पॉइंटर के यूज करके आपको बताना होगा कि एग्जैक्टली व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट दीज पीपल विल गेट, नॉट द फीचर्स बट द बेनिफिट्स. द पर्पस ऑफ दिस इज टू बिल्ड डिजायर फॉर ए सॉल्यूशन. लोगों को डिजायर होना चाहिए कि यस, आई वांट दिस प्रोडक्ट एंड आई वांट इट एनी हाउ. वो जब डिजायर आप बुलेट्स के थ्रू बिल्ड करेंगे, सो दे वुड बी eager and excited to buy your product. You can do this by using 8 to 10 best bullet points and highlight the benefits and not the features. So the difference between benefits and features is features tells us that what something is ये चीज है क्या, and benefit हमें बताता है कि what something does for me, वो चीज हमारे लिए क्या कर सकता है. So like for an example, द ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर, फ्लेक्सी फनल एक बहुत ही अच्छा
tool है, that is a funnel builder tool like ClickFunnels. So FlexiFunnels has a drag and drop feature. So ये आपका फीचर हो गया कि ये है क्या exactly. But how is this beneficial for us? Because it will help us to create funnels faster. हम फनल्स फास्टर बना पाएंगे, अपने सेल्स पेजेस फास्टर बना पाएंगे, अपने लैंडिंग पेजेस फास्टर बना पाएंगे. तो ये हमारे लिए बेनिफिट है. अब इसको एक और टॉप नॉच बढ़ाने के लिए इसको और एक हम लोग लेवल दे सकते हैं कि इसमें भी इंक्लूड कि व्हाट एग्जैक्टली दिस मींस फॉर अस, कि वो फनल हम फास्टर बना देंगे तो इससे हमें क्या क्या बड़ा फायदा दिखेगा. सो दिस मीन्स दैट यू वुड बी एबल टू डिलीवर योर प्रोडक्ट सूनर एंड गेट कैश इनटू योर पॉकेट. आप जल्दी उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे एंड आपके पास कैश आ जाएगा. सो दिस इज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट यू कैन यूज फॉर योर bullet pointers, that is feature. What exactly is the feature of your product, so you can benefit what is the it does, what exactly this feature help us to do, which means then you could explain the meaning, that what it means to the buyer, reader and prospect. So you can use this as a bullet formula and include them in your sales copy to persuade people and build that desire. अब ताकि उन्हें वो लगे कि यस आई वांट दिस प्रोडक्ट नाउ. नेक्स्ट सेक्शन इज एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी. आपको अपने प्रोडक्ट के सेल्स पेजेस के थ्रू आउट आप यू नीड टू लेट देम नो व्हाई दे मस्ट बाय why they should buy this product from you, because in general कोई भी एक प्रोडक्ट बहुत सारा है मार्केट में, so they must understand why you, not others. So you need to answer this question by letting them know what are your qualifications, how this thing has given you results and why you are giving them this thing. आप जब प्रोडक्ट मार्केट में पहले से लॉन्च हुआ रहेगा then you would have some testimonials. सो ये आपका क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में तो हेल्प करेगा, लेकिन फॉर एट द स्टार्ट द मेन सेलिंग पॉइंट फॉर यू इज योर स्टोरी एंड व्हाई यू आर so पैशनेट अबाउट ब्रिंगिंग दिस टू द ऑडियंस. सो यहाँ पे आप अपने स्टोरी को बता सकते हैं एंड हाउ दिस थिंग और दिस कोर्स और मे बी दिस प्रोडक्ट हेल्प यू इन योर वे. तो आप उस स्टोरी को हेल्प शेयर कीजिए ताकि लोग इन्फ्लुएंस हो आपके प्रोडक्ट के बारे में और जानने को, एंड दे गेट एंड दे कैन थिंक यस दिस प्रोडक्ट कैन हेल्प मी. सो यूज दिस टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी. नेक्स्ट इज मेक एन ऑफर. यहां पे अब हमारी बारी है कि हम उन्हें ऑफर एग्जैक्टली दें कि उन्हें इस प्रोडक्ट के साथ या फिर इस ओवरऑल में क्या क्या चीज मिलेगा. सो द पर्पस इज टू गिव पीपल एन एक्सक्लूसिव डील and offer that they cannot absolutely miss. उन्हें एक irresistible offer देना होगा जो वो बिल्कुल किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते. So what you can do is you have to cover what all things they are going to get, how they are going to get it, उन्हें क्या क्या चीज मिलेगा, उन्हें किस तरह से वो चीज प्राप्त होगा, प्लस उन्हें कंप्लीट प्रोडक्ट कॉस्ट, पूरा कॉस्ट उन्हें क्या पड़ेगा. So you must let them know and make an offer which includes all these things. नेक्स्ट इज टेस्टिमोनियल्स. आपने ऑफर तो दे दिया, अब यू नीड टू गेट देम मोर एक्साइटेड एंड सी द रिजल्ट्स फॉर देमसेल्व्स कि क्या रिजल्ट्स लोगों को यहाँ मिला है. सो यू कैन शेयर टेस्टिमोनियल्स हियर, व्हाट अदर पीपल्स आर सेइंग अबाउट योर प्रोडक्ट. what you can use is you can use videos, social proof. लोग आपके इन जनरल फेसबुक पेजेस में, इंस्टाग्राम, गूगल रिव्यूज में क्या बता रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में. अगर आपके पास ये प्रूफ्स ना हो एट द स्टार्ट, विच इज एट द स्टार्ट आपके पास नहीं रहेंगे, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज कोट्स एंड स्टैट्स एज वेल. प्लस इंडस्ट्री में भी अगर कोई एग्जांपल है कि इस तरह के प्रोडक्ट यूज करके या इस तरह के कोई कोर्स यूज करके इस तरह का कोई ये सिस्टम इंप्लीमेंट करके दे हैव सक्सीडेड, देन यू कैन गिव दैट एग्जांपल. एंड आप इस फेज में ट्रांजिशन इस तरह से कर सकते हैं कि बट डोंट जस्ट टेक माय वर्ड, टेक अ लुक एट व्हाट माय स्टूडेंट्स हैव टू से. तो इस तरह से आप ट्रांजिशन इस सेक्शन में कर जाएंगे. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है दैट यू नीड टू फोकस इज फ्यू कॉशन पॉइंटर्स इज
ऑलवेज टेल द ट्रूथ एंड बैक इट अप। आपको ये लगना चाहिए कि आप जज के सामने इसको प्रूव करने वाले हैं। सो नेवर लाई एंड उन्हें जेन्युइन रिजल्ट ही बताएं। देन नेक्स्ट इज द वैल्यू जस्टिफिकेशन। क्या प्रोडक्ट का आपका एग्जैक्ट पर्पस क्या है, हाईलाइट क्या है। सो यू मस्ट लेट देम नो। पर्पस वैल्यू जस्टिफिकेशन आपको इसलिए करना है so that you can highlight the value provided by your product is much higher than the price they are paying। जो वैल्यू उन्हें मिलेगा, जो उनका पैसा बचेगा, जो उनका टाइम बचेगा, वो इतना ज्यादा हाई है कि उनके सामने ये जो प्राइस है वो कुछ भी नहीं। सो यू नीड टू हाईलाइट दैट। Highlight all the bonuses, all the extra service or product they are getting। बोनसेस एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है कि वो एक एक्स्ट्रा चीज है जो लोग लेना चाहेंगे। अगर मान लीजिए कोई 3 बोनस दे रहा है, कोई सिर्फ प्रोडक्ट दे रहा है एंड एक जन प्रोडक्ट प्लस फ्यू बोनसेस उनके साथ दे रहा है, सो व्हाट विल पीपल बाय, whom will people buy from? Of course from bonuses, right? Because they are getting something extra, so you must include your bonuses। बोनसेस क्रिएट करने का भी एक स्ट्रैटेजी है। आप ये कर सकते हैं कि जब आप कॉम्पिटिटर्स के बारे में सर्च कर रहे हैं, सो देयर यूएसपी, द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस ऑफ दिस, यू कैन गिव इट एट एज अ बोनस टू पीपल। फिर आप एवरीथिंग पीपल आर गेटिंग यू नीड टू इंक्लूड इन द मेन ऑफर सेक्शन। देन आफ्टर दैट प्राइस अटैच टू ईच ऑफरिंग्स। आपको प्राइस भी बताना होगा कि इस बोनस का और इस चीज का कितना प्राइस वो एक्चुअल में पे करेंगे अगर मार्केट से लेने जाएंगे तो, या इस चीज का एक्चुअल वैल्यू क्या है। सो दैट आफ्टर दैट जब आप उन्हें कैलकुलेट कर लेंगे तो वो एक ह्यूज अमाउंट आना चाहिए जिसका डिस्काउंटेड वर्जन यू आर गिविंग देम, and then you will reveal the actual price so that they know, yes, this is really an exclusive deal and it is very beneficial for me। Like for an example, let me show you a superb example of this value justification by none other than Russell Brunson। If you have known him, he is a founder of ClickFunnels, right? So वो एक बहुत ही अच्छे तरह से वैल्यू जस्टिफाई करते हैं अपनी चीजों का। Like as you can see here is how he has done that। He has included what all things they would be getting and few bonuses as well, and this is the total price, but he has make it so irresistible and kept lowered the price to only $100। so this is how you need to make this possible। आप भी इसी तरह से अपने प्रोडक्ट को वैल्यू जस्टिफाई कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट पार्ट इज रिस्क रिवर्सल। यहाँ पे आपने यहाँ तक आपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है। दे नो कि व्हाट दे विल बेनिफिट फ्रॉम, उन्हें क्या प्राइस पे करना होगा। सो अब नाउ यू आर टेकिंग इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट if they have, you can taking that away by giving them a risk reversal, by giving them a per se a money back guarantee कि कुछ दिनों के लिए, कुछ 30 days be 15 days based on your product, उन्हें आप एक मनी बैक गारंटी दे रहे हैं कि अगर ये प्रोडक्ट आपके लिए काम नहीं करता तो आप इन्हें वापस दे सकते हैं एंड वी विल गिव यू फुल रिफंड बैक। सो दिस विल influence people that to buy your product because they don't have any risk now। वो आपके प्रोडक्ट को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर पाएंगे एंड देन दे वुड बी एबल टू मेक अ परफेक्ट डिसीजन। सो द पर्पस हियर इज दैट it should take away all the risk from the end user which will make them to trust you, और उनके सारे फियर को रिड्यूस कर देगा। ऑल्सो दे विल बिकम कॉन्फिडेंट दैट ये जो ओनर है अपने प्रोडक्ट के बारे में इतना कॉन्फिडेंट है कि वो अपने प्रोडक्ट को फ्री में भी, एक तरह से ये फ्री ही हुआ राइट उस टाइम पीरियड के लिए। सो यू आर सो कॉन्फिडेंट दैट यू आर गिविंग देम टू योर ऑडियंस फॉर फ्री। सो दिस विल encourage them and push them to buy your product। and यहाँ पे एक चीज ये हो सकता है कि आपके पास कुछ रिटर्न्स भी आएंगे उस पीरियड के बाद, बट आपको इससे घबराने का नहीं है बिकॉज इफ द परसेंटेज इज लेस देन 5% then it's good to go because the conversion rate because of this one element will be much more high that आपको ये कुछ परसेंटेज के लिए आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज द कॉल टू एक्शन। अब आपको आपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ तो बता दिया, लेकिन अब आपको उसमें कॉल टू एक्शन तो देना होगा
कि एग्जैक्टली हाउ दे विल बी एबल टू गेट दिस प्रोडक्ट। सो आप इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन से उन्हें बता रहे हैं कि वो कैसे यहाँ ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। यू कैन यूज द call to action as click here to buy now or grab now before the deal ends. You can give these types of actions pointers so that people can take action just there and there. So यहीं पे एक और important point आता है that you need to create the urgency for people to buy it now. लोग ज्यादातर डिले करना चाहते हैं कोई भी प्रोसेस को, दे प्रोकेस्टिनेट, बट फॉर अ बिजनेस ओनर प्रोकेस्टिनेशन किल्स सेल्स। सो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। सो यू नीड टू क्रिएट दैट अर्जेंसी, यू नीड टू create give tell with your copy that why is it important that they should buy now. You must give them reasons that why they should buy now. You can show like using timers, limited time offer ends in, and grab the deal before it's gone, use timers. You can do all these things to create that urgency. You can show कि इस टाइम के बाद इस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा या फिर ये ऑफर कभी आपको वापस से नहीं मिलने वाला. सो यू कैन यूज दीज थिंग्स टू क्रिएट दैट अर्जेंसी एंड दे वुड गेट इन्फ्लुएंस्ड कि अब नहीं, अब तो मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, नहीं तो फिर ये मेरे से डील हट ना जाए. सो reinstate the biggest benefit at the end of the complete copy. What the focus is, reinstate the biggest benefit. आप अपने प्रोडक्ट का बिगेस्ट बेनिफिट और क्या एग्जैक्टली ऑफर आप दे रहे हैं वो, प्लस आप कॉल टू एक्शन उन्हें एक सेक्शन में दिखा दें एंड सो दैट दे बाय देन एंड देयर, एंड लास्ट में जो भी लोग बच रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट वहीं पे खरीदें. So this is the complete structure that you should give in your copy. एक चीज हम पॉइंट मिस कर गए थे हियर इन कॉल टू एक्शन. लेट मी एक्सप्लेन यू दैट कि कॉल टू एक्शन जरूरी नहीं कि आप एक ही दो, कि सब पूरा पेज लिख लो उसके बाद नीचे एक कॉपी में कॉल टू एक्शन दे दो, बल्कि यू शुड गिव दिस आफ्टर ईच एंड एवरी सेक्शन, ईच एंड एवरी लॉन्ग सेक्शन. बिकॉज लाइक फ्रॉम टॉप इफ यू सी, आपने हेडलाइन लिखा, ओपनिंग लिखा एंड फ्यू बुलेट्स पॉइंट के बाद यू थिंक दैट नाउ यस पीपल विल बी इंटरेस्टेड, पीपल वुड वांट टू बाय. सो आपने वहां पे एक कॉल टू एक्शन दे दिया. देन आफ्टर एस्टैब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी एंड मेकिंग एन ऑफर, वहां पे आपने कॉल टू एक्शन दे दिया. So like this, after each long section, you must give this because so that जो भी people वहाँ पे influenced हैं कि अब उन्हें चाहिए वो product, वो उसे click करके वहीं पे then and there they buy it and you get your sales as fast as you can. So with this we come to end of this building blocks. So this is the thing that you should have while you are trying to write your sales copy, and इस तरह से आपको अपने sales copy को structure करना चाहिए if you want to influence people and persuade people to buy your product. मुझे comment section में जरूर बताइएगा कि इनमें से आप ऐसा कौन सा चीज था जो इससे पहले यूज नहीं कर रहे थे अपने प्रोडक्ट में, and you will be able to do, and you will be doing that from now on. Plus also if you have something else you want to add here, please let me know in the comment section. So here are the few important pointers is, आपने प्रोडक्ट के बारे में तो जान लिया, तो पूरा सेल्स पेज का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट यू मस्ट यूज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर सेल्स पेजेस दैट it has to be done ethically and everything ethically possible to make your sale. उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको सेल्स मिले. प्लस यू शुड ऑल्सो स्प्लिट टेस्ट डिफरेंट एलिमेंट्स. ये स्प्लिट टेस्ट मतलब कि मान लीजिए एक हेडलाइन आपने लिखा, उसके साथ आपने एक दूसरा पेज क्रिएट कर दिया जिसमें दूसरा कोई हेडलाइन है, बाकी सब पूरा सेम है. सो इससे जब आप ट्रैफिक दोनों में इक्वल भेजेंगे तब यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सा हेडलाइन ज्यादा अच्छा से काम कर रहा है. दिस विल हेल्प यू इन अ लॉन्गर टर्म एंड आपके एड कॉस्ट भी कम हो जाएंगे और आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे इस स्प्लिट टेस्ट के कारण. फिर what you have to do is use all these 10 building blocks in your copy, be it in a form of sentence or be in a form of paragraphs. Just hit them all and you will be able to persuade people to buy your product. So with this we come to end of this video and the topic. You would have definitely understand that how you need to structure your sales copy.
आपके सेल्स पेज को कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो उसको बाई करने में. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन don't forget to like this video, share it with your audience, and hit that subscribe button with the bell icon so that you get notification for such valuable videos whenever I release this. Plus, अब आपका आगे काम क्या है कि इस चीज को आपने सीखा, अब जाके आप इसे इंप्लीमेंट करिए, अपना प्रोडक्ट में यूज करिए एंड स्टार्ट मेकिंग कैश फॉर योर बिजनेस. So keep taking action and you will achieve the success that you want. Thank you very much. We will see you in the next video.